लुधियाना में अगर किसी ने चिकन खाना है ना तो स्टॉप सिर्फ एक ही जगह पे आके लगता है, दैट इज बाबाज। मम्मा की किचन रेसिपी ने वर्ल्ड फेमस ब्रांड खड़ा कर दिया। नेम चाहे बाबा से बट रेसिपी बेबे की है। बहुत सारी नेशनल इंटरनेशनल डेली कॉल्स भी आती हैं, सेलिब्रिटीज आते हैं। दिलजीत दोसांझ आया अभी पीछे, सलमान खान का ही ऑलवेज डिलिशियस अ फूड, ही केम फॉर द मूवी शूटिंग ऑफ भारत। उस टाइम पे उन्होंने ये फूड हमारा रेगुलर जाता रहा था उनको। रिसेंटली 3 days बैक आई वॉज इन दुबई, वहाँ पर मुझे गैरी संधू मिला। कहता तो यू नो व्हाट ही सेड मी पंजाबी, सर पाजी मेरा ढिड भर गया बट मेरी नीयत नहीं भरी यार। सबसे हाईएस्ट सेल्स एक दिन में कितनी टारगेट करी है? कॉमेडियन कॉल्ड प्रीतिश नरूला, ही सेड कि लुधियाना की जो ABC है ना, तो दैट इज A फॉर अमन चिकन, B फॉर बाबा चिकन, C फॉर चावला चिकन, A फॉर अमन चिकन, B फॉर बाबा चिकन, C फॉर चावला चिकन। कौन सी ऐसी चीज अभी भी मिसिंग लगती है कि अभी भी ऐड ऑन होनी चाहिए? द फर्स्ट थिंग इन पैन इंडिया आई एम कमिंग विद अ ड्राइव थ्रू. So it is going to be a Baba's drive-thru in the very first place, wherein we promise to deliver you everything under 1 minute. If McDonald's and KFC can do it, Then why not Baba's can do Baba's? it? I have people visiting from Bangalore, Mumbai, Delhi, जो कि सिर्फ मेरा खाना खाने के लिए आते हैं till today. So I'm going to have malai tikka and a piece of mutton seekh kebab. ये दिल मंगे मोर. Leaves us with no words. So आज के एपिसोड में बहुत सारे हम बीन स्पिल करने वाले हैं टू एवरीवन हु वांट्स टू एंटर द हॉस्पिटैलिटी लाइन. दिस इज स्पेशली फॉर यू, सो डोंट मिस दिस एंड वॉच द एपिसोड. ब्रांड बनाना इजी है, शायद चलाना भी इजी है, पर ब्रांड को नंबर 1 बना के रखना, दैट इज वेयर द टफेस्ट पार्ट कम्स. लुधियाना की गलियों से निकला एक ऐसा ब्रांड जो वर्ल्ड फेमस हो चुका है अपने फ्लेवर्स के करके. सो वी आर टॉकिंग अबाउट नन अदर देन Baba's, the world famous chicken and the number of items that they now have to serve. So welcome to the Founders Unplugged, and today's episode is going to be very special, especially if you're from Ludhiana. You would definitely like to know the journey of Baba's, and it is coming from Mr. Avneet, the man who's taking the legacy forward himself. Plus, if you want to grow in hospitality line, अगर आप इस लाइन में अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, so second half will be dedicated to that. We'll talk about all the do's and don'ts, what to do, how to do, and basically the challenge part that comes, how to expand your business. So without any further ado, let's welcome our respected guest for the day, Mr. Avneet. A very warm welcome to you. Hi Jasnoor, how are you? बहुत बढ़िया, आप बताओ कैसे हैं? I'm good and pleasure to have you here with us. Thank you so much, sir. It's always lovely and feeling of true honor नहीं, to be thank here you. at Baba's. और स्पेशली कोई ਅੱਜ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੋਡਕਾਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋ, ਇਟ ਫੀਲਸ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜਡ. It feels definitely. So I think जो भी लुधियाना के रहने वाले हैं ना, everybody would love to know your journey. स्पेशली लुधियाना वालों के लिए तो ये एपिसोड बहुत ही स्पेशल होने वाला है. कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे आपने टेक ओवर किया, पूरी जर्नी कैसे रही, 1 by 1 हम आपके साथ एपिसोड्स में जानेंगे इन ईच एपिसोड. एंड ऑल्सो अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहता है, लाइक आई टोल्ड यू, तो उसके लिए भी क्या टिप्स एंड ट्रिक्स रहेंगी, वो इस एपिसोड में आपसे जानेंगे. I'll be all here to explain you the journey और क्या है इस बिजनेस में. I'll definitely let you know. And I think it's your first podcast. It's my first podcast. There have been interviews earlier with different YouTubers, but it's the first podcast. So I think there's so much coming. Yeah, so much coming, definitely. So चलते हैं 64 years back in 1962. Yes, 1962. Yes. So how did it all start? It's given to you by your grandfather. Yeah. So कैसे सब शुरू So हुआ सिलसिला? I am the 3rd gen into this. It was started by my grandfather, Sardar Himmat Singh, and so he is no more with us. I was born in 1986. By the time I was born, he was not there. So I had never the privilege to meet him. So it's just it's the legacy which I feel that has been passed by my father to me. And yes, my father is also active with me in business. He is the one who supports me with all my decisions. And आज इधर पहुंचा हूँ तो it is because of my father, my mother. बाबा चिकन जो बिल्ड हुआ है, अभी आपको मैं स्टोरी सुनाऊंगा सारी कि हाउ इट स्टार्टेड एज बाबा चिकन, हाउ इट गॉट इनटू बाबास, और इसमें मेरा किस किस का रोल रहा है विद रिस्पेक्ट टू जो आज वर्ल्ड फेमस प्रोडक्ट्स हैं. बटर चिकन हो गया, स्पिनिश कॉर्न रोल्स हो गए, फिश फ्राई विद टाटा सॉस हो गई, जिसके लिए हमें अवार्ड्स मिले हैं, डिफरेंट फोरम्स अवार्ड्स मिले हैं, इवन तक कि नेशनल अवार्ड्स भी मिले हैं.
और लाइक आपको सभी बताएंगे कैसे जर्नी स्टार्ट सो करते हैं स्टार्ट है ना एपिसोड बाय तो एपिसोड. दिस वाज स्टार्टेड इन 1962 स्मॉल ईटरी नियर टू लुधियाना रेलवे स्टेशन दैट एट दैट टाइम द शॉप जो थी उसका कोई नेम नहीं था सो इट वाज जस्ट छोटा सा क्योस नहीं होता जैसे खोखा कहते थे पहले मतलब वेरी स्मॉल स्पेस मे बी 10 बाय 20 200 स्क्वायर फीट की स्पेस होती है जहाँ पर दादाजी ने काम करना शुरू किया सो ड्यू टू हिज say elderly appearance and a very pleasing appearance he had a free flowing white beard so everyone used to call baba with love to him तो जितने भी उस टाइम इवन टुडे जो आज लुधियाना में renowned names हैं very big industrialist they used to visit my grandfather evening में अपनी फैक्ट्री से फ्री होना and then they used to come to my grandfather and they used to say कि आज बाबा जी के पास खाना खाने चलेंगे सो वहाँ से सक्सेस होती होती इट गॉट फेमस और वहाँ द वर्ड उस सिंस ही वॉज मोर फेमिलियर विद द कुकिंग ऑफ नॉन वेज फूड एंड उन्होंने जो इन्वेंट किया था वो था टिक्कास द फिश टिक्का चिकन टिक्का सो द फिश टिक्का इन लुधियाना वॉज सोनली इंट्रोड्यूस्ड बाय हिम मतलब उनके पहले देयर वाज नो वन इन लुधियाना नॉट इवन सिंगल रेस्टोरेंट और ढाबा और एनीथिंग जो फिश को सर्व करता था सो ही वाज द वन हु स्टार्टेड विद द टिक्कास तो लोगों में उस चीज़ का क्रेज़ इतना बढ़ गया कि गरम गरम टिक्कास उन्होंने अपने घर से आना और मेरे दादाजी के पास बैठ के उस टाइम स्कूटर्स अपने स्कूटर्स पर आगे कईयों ने बैठ खाना कईयों ने जैसे हमारे जो सबसे ओल्ड जो दादाजी की प्लेस थी उसके साथ छोटा सा इट वाज देयर वाज अ लिकर वैंड उसके बाद टेबल्स पे जहाँ जिसको जगह मिलनी वहाँ पर खाना सो अल्टीमेटली द सक्सेस केप्ट ऑन गोइंग फिर उसके बाद मेरे फादर ने ज्वाइन कर लिया मेरे दादाजी को तो उसके बाद माय फादर क्रिएटेड हिज फर्स्ट आउटलेट इन दी इशमीत चौक जो हमारा आज भी फ्लैगशिप आउटलेट है जिसके लिए फेमस है तो उसके वहाँ से जर्नी स्टार्ट होती होती माय फादर गॉट इनटू बिजनेस जितनी जो टिक्कास वगैरह डेवलप थे वो सभी रेसिपीज दादाजी की थी जिसके लिए बाबाज फेमस स्टार्ट हुआ था वो टर्निंग पॉइंट आया 1991 में जब मेरे डैड ने इशमीत चौक में अपना हमने रेस्टोरेंट सेटअप किया आउटलेट ओपन किया तो उधर वहाँ पर मेरे मदर ने रेसिपी दी बटर चिकन की तो जो ये आज वर्ल्ड फेमस बटर चिकन है या बटर पनीर है दोनों वो मेरे मदर की रेसिपी है टोटल माय मदर्स रेसिपी उसमें किसी का कोई रोल नहीं था तो उस वो रेसिपी मेरे मदर से स्टार्ट होती होती हमने उसको कमर्शलाइज कर दिया कि मतलब वी टुक इट ऑन अ लार्जर स्केल बाय द टाइम आई जॉइंड बिजनेस तो वो स्केल नहीं था मतलब वी हैड आवर प्रेजेंस इन लुधियाना ओनली सो व्हेन आई जॉइंड the business I started taking it आपने किस ईयर में ज्वाइन किया I see officially तो मैंने 2008 में ज्वाइन किया बट सिंस द ईयर 2000 I started accompanying my father so because I finished my international business study from University of Auckland मैं वहाँ से ख़त्म करके जब इंडिया आया तब मैंने आके अपने आप को 2009 में मैंने अपने फादर को ज्वाइन किया उस ईयर में हमने जो रेस्टोरेंट मेरे फादर ने बिल्टअप किया हुआ था हमने उसको एक नया लुक दिया वहाँ से हमने वर्ड बाबा चिकन से हम बाबाज में आ गए वाई वी शिफ्टेड फ्रॉम द वर्ड बाबा चिकन टू बाबा अगेन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी जैसे अब आप हो व्हाट डू यू लाइक टू हैव फर्स्ट टेल मी I'll have vegetarian food because I'm a vegetarian. Okay, so you have given me the answer by yourself. अगर आप vegetarian हो, हमारे पास बहुत से लोग जो vegetarian थे, they didn't used to come. Going to the word chicken in our brand. वो everyone used to think कि ये तो chicken वाली place है, यहाँ पर सिर्फ chicken ही मिलता होगा. तो उस वजह से we were losing a lot bit on the segment of the people who relished our food, but again they were vegetarians, not hardcore vegetarians, क्योंकि hardcore vegetarians they don't prefer to going a place which has more veg and non-veg. तो we had people जिन्हें हमारा veg food पसंद था, but owing to word chicken they refrained from coming to us. So in 2009 when I joined dad into business, तो मैंने पापा को बोला, मैं कहा यार पापा we have to get rid of this word chicken and let us come into this. तो पापा कहते हम नेम को कर रहे थे बाबा वेज एंड नॉन वेज. तो मैं कहा नहीं पापा ये वेज एंड नॉन वेज ना मुझे अच्छा ही लगता मतलब व्हेन इट कम्स टू रेस्टोरेंट कहीं बाहर थोड़ा लिखा होता है इट्स वेज एंड नॉन वेज बोल. मैं कहा पापा इट हैज़ टू बी समथिंग विच इज रिलेटेड टू बाबा ओनली एंड वी हैव टू गेट इट ऑफ. एंड देन अगेन
ममा टोल्ड ममा कहते लेट्स मेक इट बाबाज Babas. सो इट लुक्स प्रीमियम एंड बाबाज अ वेंचर ऑफ बाबा चिकन इशमीत चौक सो अब आप दुनिया में कहीं पर भी देखते हो इट इज बाबाज अ वेंचर ऑफ बाबा चिकन इशमीत चौक सो नाउ वी हैव डाइवर्सिफाइड फ्रॉम द वर्ड बाबा चिकन टू बाबाज बाबास तो अभी उसके बाद द जर्नी बोलते स्टार्टेड फिर भी लोग बाबा चिकन ही है। वो देखो मतलब अभी जैसे अब मुंह कोई पे चढ़ा भी हुआ है अभी ना ये। कोई भी मान लो आई स्ट्रेट फ्रॉम सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल तो मेरे से पूछो कहाँ पढ़े हुआ कॉन्वेंट में पढ़ा Convent में पढ़ा। तो I am वो also an alumni of convent. चलो हाई फाइव होता है तो वो उसमें वो हम तो वी एज कॉन्वेंटिस का अंडरस्टैंड कि वो ऐसे ही रहता है तो एंड ऑफ द डे मतलब यस बट इन लास्ट से 10 years अभी काफ़ी लोगों को इसकी अब हो गया कि इट इज़ बाबाज नाउ सो अब मुझे बहुत कम लोग कहते हैं एवरीवन नोज बाबाज एवरीवेयर सो क्रक्स तो स्टोरी का यही निकला है कि मम्मा की किचन रेसिपी ने वर्ल्ड फेमस ब्रांड खड़ा कर दिया। मतलब नेम चाहे बाबा है बट रेसिपी बेबे की है हाउ अमेजिंग। सो फ्रॉम लुधियाना आप पूरे पंजाब में एंड देन यू हैव मेड योर प्रेजेंस ग्लोबली। Yes. तो एक्सपैंड करना बिजनेस का आइडिया किसका था? एक्सपैंड करना बिजनेस का आइडिया डेफिनेटली डैड का था डैड वांटेड कि अगर लुधियाना में लोग टेस्ट को इतना रिलिश कर रहे हैं या इतना पसंद कर रहे हैं व्हाई नॉट गो टू अदर सिटीज़ एंड अदर टाउन्स जहाँ पर लोगों को हमारे प्रोडक्ट के बारे में टेस्ट के बारे में पता लगे बिकॉज जब नई फ्रेंचाइजीज थी तब पीपल यूज टू कम कोई कहता था मैं जलंधर से खाना लेने आया हूँ जी कोई मैं बठिंडा से खाना लेने आया हूँ तो एवरीवेयर हर जगह से लोग आते थे खाना खाने अभी भी आते हैं बट अभी जब डिफरेंट जगह एक्सपैंड हो गया तो लोग स्पेशली ट्रैवल नहीं करते हैं उसके बाद सो वी स्टार्टेड आवर जर्नी माय फर्स्ट फ्रेंचाइज आउटलेट वाज इन जलंधर अगेन इन 2016 उधर फर्स्ट फ्रेंचाइज आउटलेट वहाँ पर मेरे लोकल पार्टनर्स हैं to mention name Siddharth Kesar and Saurav Khosla. They two again same age mates. They very enthusiastic people. They came to me to Ludhiana. Saurav came to me and said, "Paji, I want to do it." So I said कि यार मतलब मुझे भी एक्सपीरियंस नहीं है फ्रेंचाइज का नहीं कहता कोई गल नहीं विल डू इट टुगेदर आप तुसी फ्रेंचाइज दवो ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ सो फर्स्ट फ्रेंचाइज वाज मेड इन जलंधर मॉडल टाउन अगेन जलंधर में उसके बाद वहाँ पर हमें स्टार्टिंग में तो बहुत हिकअप्स फेस करने पड़े बिकॉज इट वाज अ न्यू टर्म मतलब न्यू मॉडल न्यू बिजनेस मॉडल एचआर की प्रॉब्लम्स क्वालिटी की प्रॉब्लम्स बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी बट अगेन थोड़े थोड़े हिकअप्स वो स्पीड ब्रेकर आते आते फिर फाइनली वो प्लेन रनवे पे आके उसने फ्लाइट ले ली एंड आज उन्हीं फ्रेंचाइजी के बाद मेरी दे रन 4 ऑफ माई स्टोर्स एक ही बंदा 4 स्टोर्स चला रहा है जलंधर में 2 हैं पठानकोट में हैं तो ही इज डूइंग वेरी गुड फ्रेंचाइज मॉडल कैसे वर्क करता है franchise model it's so we operate on a franchise model it's called FOFO it's franchisee owned and franchisee operated wherein the complete kitchen team is given by us हम रेवेन्यू शेयर वगैरह में नहीं वर्क करते हैं वी वर्क ऑन माइनर सी फ्रेंचाइज फीस प्लस द स्पाइसेस आर सप्लाइड बाय अस टू द फ्रेंचाइजी जो हाँ सीक्रेट सी देखिए अभी होता क्या है कुकिंग में आप भी यू आर अ प्रोफेशनल वुमन बट आप डेफिनेटली कुक करते हो गया नहीं करते चलो आपको जितनी भी नॉलेज हो गया आई विल एक्सप्लेन ले मैं नॉलेज में समझाता हूँ सी इंग्रेडिएंट्स दुनिया में वही होते हैं आज अनियन टोमेटोज इसी चीज़ों से यू गेट टू मेक ग्रेवीज बट अगेन जो फ्लेवर है ना वो जो तड़का लगना है बाबास का वो स्पाइस से आना है और वो स्पाइस जो है जो टिक्कास की स्पाइसेस थे वो मेरे ग्रैंडफादर की रेसिपी है जो हमारे बटर चिकन और बटर पनीर की ग्रेवी में जो स्पाइस पड़ता है वो मेरे मम्मा की रेसिपी है और टिल टुडे वो हमारे खुद के इनग्रोन हमारे फैसिलिटीज़ हैं जो हमने हायर करी हुई हैं मतलब दे आर आउटसोर्स्ड जो फार्म्स हैं वहाँ पर हमारे स्पाइसेस ग्रो करते हैं फिर वहाँ के इन हाउस हमारी खुद की फैसिलिटी में ग्राइंड होते हैं और हम उनको यूज़ करते हैं तो कितनी देर के लिए स्टोर करके रख सकते हैं स्पाइसेस स्पाइसेस एज ए लाइक जो स्पाइसेस है इट डिपेंड्स द शेल्फ लाइफ कौन सा स्पाइस है सो एनीवे रेंजिंग फ्रॉम 6 months टू 18 months एक स्पाइस की लाइफ रहती है मतलब मैक्सिमम इफ आई कैन ब्रीफली आंसर योर क्वेश्चन इज एनीवेयर फ्रॉम 6 months till 18 months is the shelf life of the spices depending on which spice it is being used so because now Babas is a brand you yourself have become a brand along with Babas है ना so क्या लगता है कि सारे शौक अभी पूरे हो गए कि अभी और होने हैं Babas को और ऊपर लेके जाना है see
learning is a never ending process and growth should be restricted. So this I have learned all through my life कि आदमी को सीखने से रुकना नहीं चाहिए और बढ़ने से रुकना नहीं चाहिए. तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं जब बढ़ते हो. देयर आर मैनी प्रॉब्लम्स जो फेस होती हैं, बट डेफिनेटली अभी द जर्नी इज आई कैन से इट हैज स्टार्टेड मूविंग अपवर्ड्स. तो अभी तो द स्टार्ट वी आर ग्रोइंग बाय बाबा दीप सिंह ग्रेस. वी आर ग्रोइंग एंड आवर मेन स्ट्राइव इज कि हम अपनी क्वालिटी रीटेन करें. हम सी आई एम नॉट दैट पर्सन जो मैं कहूँगा कि यार मेरे आज एक्स नंबर ऑफ आउटलेट्स बन जाएं, तो पूरी दुनिया में और आउटलेट्स बन जाएं, 200 आउटलेट बन जाए, 100 बन जाए. आई वॉन्ट कि आउटलेट चाहे 20 बने चाहे 30 बने, जितने भी बने उन पर क्वालिटी शुड बी कंसिस्टेंट. तो वी थ्राइव फॉर दैट. डेफिनेटली गलतियाँ भी होती हैं, एवरी डे इज़ नॉट डे, एवरी डे इज सेम नहीं होता, बट वी हैव अचीव्ड स्टैंडर्डाइजेशन इन आर प्रोडक्ट्स विच हैज़ बीन माई मेजर अचीवमेंट. आज आप लुधियाना में बटर चिकन खा रहे हैं, आप जलंधर में खा रहे हैं, आप गुड़गांव में खा रहे हैं. सो इट इज़ अ मेजर सेविंग ऑथेंटिक टेस्ट. सो जो मगर क्योंकि सी अभी द टर्निंग पॉइंट आपने जैसे पूछा था अभी मेरे से कि हाउ मतलब एक्सपेंशन कैसे ये स्टार्ट हुआ. सो द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई करियर वॉज व्हेन आई ओपन अ स्टोर इन गुड़गांव. सो गुड़गांव स्टोर जब हमने ओपन किया, सो इट वाज समथिंग वी ऑल्सो डिडंट see coming. So it was beyond imagination. मतलब it did wonders for us. Even till today it does very good. But definitely the competition in the Delhi NCR goes every day. उसमें तो रोज़ नया रेस्टोरेंट है, रोज़ नई टेक्निक्स है, बट स्टिल बाय गॉड ग्रेस एवरीथिंग इज गोइंग गुड. और उसके बाद हमने जब गुड़गांव में आउटलेट ओपन किया तो वी गॉट अ नेशनल प्रेजेंस. तो डेफिनेटली व्हेन यू गो टू कैपिटल आप आउटलेट ओपन करते यू गेट अ नेशनल प्रेजेंस. तो हमें गुड़गांव ने हमें बहुत अच्छी नेशनल प्रेजेंस दी है. वहाँ पर मेरे जो फ्रेंचाइजी मिस्टर अमन गुलाटी, ही हैज़ बीन अ एड टू मी ऑलवेज, ही हैज़ हेल्प्ड मी ऑलवेज. वो मतलब ये एक गॉड गिफ्ट भी रहा है कि जितने फ्रेंचाइजीज मिले हैं अच्छे मिले हैं, उनके साथ काम करके अच्छा लगता है. तो इट हैज़ बीन अ गुड जर्नी. तो अभी हम वी आर वर्किंग हार्ड कि और जैसे अब ये जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, सो दिस इज़ अगेन बाबास का नया वर्जन. इट इज़ बाबास एक्स सोयर 7. तो सोयर 7 इज़ ऑल, इसका कोई बाबा से कोई लिंक भी था. सो इट वाज, इसे हमने सोयर 7 को कोलैब किया है बाबास के साथ. सो सोयर 7 फ्रेंच वर्ड विच मीन्स प्लेजेंट इवनिंग. तो इसको वी दिस इज़ द फर्स्ट प्लेस इन लुधियाना. आई एम नॉट अवेयर पंजाब में ऐसा कॉन्सेप्ट है कि नहीं है, बट लुधियाना डेफिनेटली इट्स अ फर्स्ट प्लेस वेयर वी हैव एन इन हाउस ब्रूअरी. वी हैव स्पोर्ट्स में वी हैव क्रिकेट, फुटबॉल, पिकल बॉल, द लेटेस्ट स्पोर्ट जो आज की किड्स में बहुत जिनका शौक है, किड्स को ट्रेंड चल रहा है कि पिकल बॉल खेलना है. तो वी हैव अ पिकल बॉल कोर्ट, वी हैव अ फुटबॉल कोर्ट, वी हैव अ क्रिकेट कोर्ट. तो और उसके बाद देन वी हैव ओपन गार्डन्स, वी हैव प्राइवेट डाइनिंग. ये सो इट इज़ वन ऑफ जहाँ पर इस जगह पर वी हैव प्राइवेट डाइनिंग रेंजिंग फ्रॉम 15 people till 30 people. And if someone wants for 60-70 people, then we have private dining attached with garden as well. So this is all together a different place. यहाँ पर traffic नहीं है. There is ample of parking, जितनी मर्जी कार लगाई जाओ. It is definitely 2 kilometers away from the main roads. But we purposely chose this. We wanted to create an oasis in a chaos. मतलब वो उधर chaos को छोड़ के wanted someone 2 people have come और इसमें oasis में बैठे rather than sitting in chaos. बस लुधियाना में वी हैव स्टोर्स. लुधियाना में इशमीत चौक तो फ्लैगशिप स्टोर हो गया. देन ये सोयर 7 कनाल रोड पर है, किच्चू नगर में है. सो लुधियाना इज ऑलमोस्ट कवर्ड नाउ. सारा कवर हो गया लुधियाना से ऑलमोस्ट. डुगरी में हमारा कौन सी फेवरेट डिश है? सी आई टेल यू फेवरेट डिश का आंसर मैं आपको देता हूँ क्या है. वो कहते हैं ना हलवाई अपनी मिठाई खुद नहीं खाता, व्हाट इज द सेइंग. बट मैं अपनी मिठाई खुद खाता भी हूँ, मैं अपना चिकन भी खुद खाता हूँ. आई रियली रियलिश इट. मैं दुनिया में कहीं से भी ट्रैवल करके आ रहा हूँ, मुझे मेरे डैड फ़ोन करके पूछते हैं कहाँ पहुँच गया है, क्या खाएगा. तो मुझे मतलब अप टू 4-5 साल पहले तो मेरे से पूछते थे क्या खाएगा. अब उन्हें पता होता है कि इसको जो मर्जी पूछते हैं खाना बटर चिकन. सो द मोमेंट आई एंटर माई हाउस व्हेन आई एम ट्रैवलिंग आउट ऑफ इंडिया, द मोमेंट आई एंटर माई हाउस द फर्स्ट थिंग आई नीड टू वांट इज़ कि मुझे बटर चिकन के साथ रोटी चाहिए. सो मतलब इट्स नॉट दैट कि मैं एवरीडे बटर चिकन खाता हूँ. येस वीकली ट्वाइस और मे बी समटाइम्स एक बार वीक में ट्वाइस अ वीक. तो आई प्रेफर हैविंग बटर चिकन. सो इट्स माय फेवरेट डिश.
खुद कुकिंग करते हैं आप? आपने मेरे को क्वेश्चन पूछा। Definitely, I love to cook a lot. अगर I develop dishes myself as well. So we have a dish called sorry, we have a dish called fish belly in our menu. So that was Your invention. that was my. It was not my invention. It was something I fused. So basically फिश बेले उस टाइम पे इनोवेट किया जब मार्केट में पास्ता की डिमांड पीक पर थी. So I said कि मतलब see I don't like switching cuisines. See Baba's is known for North Indian cuisine. So we have this forte of मतलब दादाजी के टाइम से लेके अब तक हमारा ये forte रहा है कि हम इसी cuisine में we have been the leaders. So मुझे कोई पिज़्ज़ा पास्ते बेचने का शौक नहीं था. और neither I wanted to enter. Definitely this place has, बाकी बाबास पे नहीं है because this place is again a different concept altogether. उसके बाद फिश बेले पे आते हैं तो I fuse the white sauce of pasta into desi style along with the fish which is grilled and put it in the dish. तो वो डिश इतनी हिट हुई, people went crazy over it. Even till today, मतलब अभी तो विंटर्स हैं तो people are मतलब वो जिसको कहते हैं ना पंजाबी में टिकट पे माल बिकता है, बोला साहब है. ऑलराइट. सो आपके जब आप शुरू में आए है ना बिजनेस लाइन में आए, आपके माइंड में ऑलरेडी था कि पापा के बिजनेस को ही आगे लेके जाना है, और इफ नॉट व्हाट actually did you want to become? See, all through my life I have been excellent in academics. So I was one of the toppers in 12th grade. उसके बाद then I did BCom honors. उसमें भी I secured more than 80% in that case also. So my father aspired कि मैं IAS या PCS की स्ट्रीम में जाऊँ. वो मुझे हमेशा ये कहते थे कि यू शुड गो फॉर सिविल सर्विसेज, और वो तो हमारे फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स कुछ सिविल सर्विसेज में है भी, तो दे ऑल वांटेड कि मैं उस चीज़ में जाऊँ कि इतना ब्रिलियंट है ये सच. बट आई बैक ऑफ द माइंड नेवर वांटेड टू डू इट. तो वन फाइन डे व्हेन आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन देन पापा वाज आफ्टर मी कि चल हुण सिविल की तैयारी करना है, मतलब लेट्स गिव इट अटैम्प्ट. तो मैं पापा ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ पापा ठीक है ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਬਟ ਦਿਲੋਂ आई डोंट वांट टू डू इट. देन मदर सपोर्टेड. माई मदर सेड कि जो ये करना चाहता है लेट हिम डू इट, कि डोंट लेट अस नॉट स्टॉप हिम. फिर उसके बाद देन पापा सेड कि ठीक है, if his destiny is calling for this, let us not bind it up and let it. फिर उसके बाद then I went abroad for a year. I did my master's course in culinary as well. I did it from there. Then I came back. Then I started expanding. French again 2011 was a turning point in the career जब इशमीत चौंग रेस्टोरेंट को डिमोलिश करके ब्रांड न्यू it got a facelift. So it is again getting a facelift very soon. Plus अब हम मतलब it is going to be one of the most beautiful restaurants of Ludhiana जो अभी इशमीत चौंग में रेनोवेट हो रहा है. हाँ, तो ये ऑलरेडी स्पिल कर दिया आपने सीक्रेट. Definitely any publicity is good publicity. Always. अच्छा, कौन से शौक पूरे कर लिए बाबा से? बाबा से कौन सी पर्सनली तो इट्स ऑल गॉड्स ग्रेस, ही हैज गिवन एवरीथिंग. आई एम हैप्पी एंड कंटेंटेड वॉट एवर आई हैव. बाबा से सी it feels a privilege not to be a part of बाबा. सी बाबा is above me also now. मतलब ठीक है, एक टाइम पे लगता था कि मैं बाबा को बना रहा हूँ, मैंने सब कुछ किया, नहीं. सो बाबा has been it was always destined to be a bigger brand and it has become a bigger brand now. तो अभी सभी चीज़ें पूरी हो गई हुई हैं इससे, एंड बहुत सारी नेशनल इंटरनेशनल डेली कॉल्स भी आती हैं, सेलिब्रिटीज़ आते हैं. दिलजीत दोसांझ आया अभी पीछे, सलमान खान का ही ऑलवेज डिलिशियस फूड. ही केम फॉर द मूवी शूटिंग ऑफ भारत. उस टाइम पे उन्होंने ये फूड हमारा रेगुलर जाता रहा था उनको. तो अभी रिसेंटली 3 days बैक आई वाज इन दुबई एट माय स्टोर. आई जस्ट केम बैक डे बिफोर यस्टरडे. वहाँ पर मुझे गैरी संधू मिला. उसने भी मुझे एक क्लिप है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी आफ्टर दिस. तो उसमें वो कह रहा है, कहता आप मैं दुबई विच 8 दिन हो गए आया. सो इट वाज द फर्स्ट, जब मैं उधर था वो वाज द फर्स्ट डे जब वो मुझे मिला. कहता ये खाकर तो तसल्ली होगी. कहता तो यू नो व्हाट ही सेड मी पंजाबी, सर पाजी मेरा ढिड भर गया बट मेरी नीयत नहीं भरी यार. मैं कहा नहीं. सो इट फील्स अकम्पलिश्ड कि अच्छा लगता है ਹੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਓ ਤੇ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬਾਬਾਜ਼ ਐਂਡ ਮੋਰ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਲੋਕੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ. ਸੋ ਇਟ ਫੀਲਸ ਅ ਸੈਂਸ ਆਫ ਐਕਨੋਲੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਐਂਡ ਆਨਰ ਕਿ ਜਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ.
सबसे हाईएस्ट सेल्स एक दिन में कितनी टारगेट करी है? हाईएस्ट सेल्स सी टारगेट तो बहुत कुछ किया हम वी एस्पायर, बट मॉनेटरी टर्म्स में यस, पर आउटलेट पे ग्रॉस सेल्स कभी हाईएस्ट 5 लाख 6 लाख भी टच कर जाती हैं, डिपेंडिंग ऑन कौन सा ईव है, मे बी इट्स अ न्यू ईयर ईव, रूटीन में तो नहीं होती, बट मे बी इट्स अ न्यू ईयर ईव समडे, और यू कैन से कि कोई फेस्टिवल है, बिगर फेस्टिवल दिवाली के दिनों में, सो इट टचेज अराउंड 4 to 5 लाख रुपीज़। सो जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर किसी को भी हॉस्पिटैलिटी लाइन में आना है, किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है, तो न्यू कमर्स के लिए क्या सजेशंस है, क्या टिप्स हैं? See, to be very honest, again, I will जिन लोगों को पैशन है कि they want to enter into a food business, definitely they should opt for it. जो लोग ये सोच के करते हैं कि वी विल डू एज अ साइड बिजनेस, हम किसी ब्रांड की फ्रेंचाइज ले लेते हैं, हम मान लो किसी का अच्छा बिजनेस चल रहा हो, कहता है मैं इस ब्रांड की फ्रेंचाइज ले लेता हूँ, तो दिस वर्क डिमांड्स फुल टाइम डिवोशन। इट्स नॉट कि आपने बाबास का बोर्ड लगा लिया और मैंने टीम दे दी और स्पाइसी दे दी तो वो काम चल पड़ेगा, नहीं। देयर आर लॉट मेनी थिंग्स इन्वॉल्वड, इट इन्वॉल्व्स टाइम, quality checks, again the cooking part has to be it has to be kept in check। चाहे आप इंटरनेशनल ब्रांड्स भी जितने मर्जी ले लीजिए, चाहे मैकडोनल्ड्स है, KFC, पिज़्ज़ा हट है, सो उन्हें भी ये प्रॉब्लम्स फेस होती हैं। अब आप बहुत सारे जैसे लुधियाना में ले लें तो कोई लोग कहते हैं कि सनम्यूलर मैकडोनल्ड्स का टेस्ट अच्छा, अनसर का टेस्ट मैकडोनल्ड्स का बैड हो गया। सो सी इट इज़ फूड, अगेन इट्स ऑल ह्यूमन थिंग, मतलब कोई रोबोट्स तो है नहीं जो बना रहे हैं, और ना ही ये है कि मतलब उस रेसिपी को हर टाइम आप उसे उतना कर सकते हो कि वो परफेक्शन पे आ जाए। जो ह्यूमन के हैंड का टच है वो तो हमेशा रहना ही है, चाहे AI भी हमारे बिजनेस में आ जाए, विच इज़ कमिंग, बट अगेन इट कांट आउटपोस्ट ह्यूमन इन दैट। तो डेफिनेटली जो लोग एस्पायर कर रहे हैं कि दे वांट टू एंटर इनटू फूड, यस दे शुड एंटर, बट प्रोवाइड दे हैव पैशन फॉर इट एंड दे वांट टू टेक इट एज अ फुल टाइम प्रोफेशन, नॉट एज अ पार्ट टाइम प्रोफेशन। एंड जो लोग आज मेरा ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं उन्हें डेफिनेटली कहूँगा दोज हु आर इंटरेस्टेड टू टेक फ्रेंचाइज शुड कॉन्टैक्ट मी। माय नेम इज़ अवनीत सिंह, यू कैन फाइंड मी हियर, नंबर आप दे देना और नंबर लोग कमेंट्स में भी मांग लेंगे। तो डेफिनेटली बिजनेस करने से पहले इवन हमने ट्रेडमार्क को रजिस्टर किया, तो बोथ ट्रेडमार्क्स बाबा चिकन एंड बाबाज आर विद अस, तो हम फ्रेंचाइजिंग करते हैं उस चीज़ की। बट अगेन माइंड हमेशा और पैशन होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर आपके लिए पैशन नहीं है ना, फूड खाने के लिए और फूड बेचने के लिए, तो 2 डिफरेंट थिंग्स। खाने के लिए तो सभी का पैशन होता है, हर बंदा कहता है अच्छा फूड खिला दो मज़ा आ जाएगा। अच्छा फूड किसी को खिलाना और खुद को खाना है 2 डिफरेंट थिंग्स। तो यू शुड स्ट्राइव यार मैंने अच्छा फूड खिलाना भी है, तो देन यू कैन डू इट एज अ बिजनेस। आपने सबसे बड़े चैलेंजेस कौन से फेस किए हैं इन द फूड बिजनेस? सी आई टेल यू द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर मी हैज बीन स्टैंडर्डाइजेशन। तो मतलब और सबसे बड़ा चैलेंज भी यही था, स्टैंडर्डाइजेशन था कि टेस्ट लेवल सेट हो गया, आज मेंटेन करके 64 ईयर्स हो गए हैं। अब आपने यू टोल्ड इन योर, जब हम मिले आपने बोला कि सर इतने रेस्टोरेंट खुलते हैं, इतने बंद होते हैं, हाउ इट हैज़ बीन कि आपने ये लेगेसी को मेंटेन किया है ऑल थ्रू। द ओनली थिंग इज हमने क्वालिटी पे स्ट्राइव किया है। मतलब अब आज भी सभी कुछ होने के बाद every morning, if I am here in Ludhiana or at my place, every morning I go to my restaurant, I go to Ishmichung restaurant, I keep a check on each and everything. मतलब right from vegetables, dairy, poultry, meats, everything is checked. रॉ स्टेज पे चेक होता है, फिर जब वो कुक होता है देन हमारे रेस्टोरेंट में सभी मतलब मुझे बोलते हैं कि सर कोली चम्मच लेके घूमते रहते हैं, बिकॉज आए जब वो कढ़ाई में बनता है तो आए उसी में से हम टेस्ट कर लेते हैं कि कोई कमी पेशी नहीं है। हमारे हेड शेफ्स भी हैं, एग्जीक्यूटिव शेफ भी हैं जो कि इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, बट एवरी डे सेटिस्फैक्शन आप खुद को सेटिस्फैक्शन मतलब इट हैज़ टू बी आइदर मी और माई डैड, सो हु चेक्स इट। तो क्वालिटी कंट्रोल इज़ द बेसिक थिंग इन आवर बिजनेस। सी आप
डिस्काउंट स्ट्रेटजीज दे के कुछ दिनों के लिए सर्वाइव कर लोगे। अब बहुत अच्छे ब्रांड्स इनकी डिस्काउंटिंग स्ट्रेटजी थी, बट अगेन दे वैनिश्ड फ्रॉम द मार्केट। वो लोगों को उस टाइम लगता था कि एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं, बहुत बिजनेस करेंगे, बट ऐसे नहीं होता। इट इज़ नॉट कि एक के साथ एक फ्री देने से आपका ब्रांड नेम बन जाता है। ब्रांड नेम बिकम्स ओनली विद क्वालिटी, इसके अलावा नहीं। एब्सोल्युटली। बाबास के अलावा आपको किसका फूड पसंद है? मुझे बाबास के अलावा बहुत लोगों का फूड पसंद है। आई सी आई एम माई सेल्फ अ फूडी। मैं इतना, आप मेरे वेट से देख रहे हो, मैं मोटा हुआ हूँ, तो मेरे को काफ़ी अच्छी जगहों का फूड पसंद है। लाइक आई ईट फ्रॉम अमन्स एज वेल, आई ईट फ्रॉम चावला एज वेल, सो वी आर गुड फ्रेंड्स एज वेल इधर। और उसके बाद लुधियाना में चंडीगढ़ में जैसे रेस्टोरेंट कॉल स्वागत, में उसका फूड अच्छा लगता है। और साउथ इंडियन खाना तो सागर इतना अच्छा लगता है। तो सभी जगह तो मल्टीपल रेस्टोरेंट्स वेयर आई गो अच्छे, मतलब क्योंकि सी अगेन जितना आप ट्रैवल करता हूँ, जितना मैं फूड लोगों का ट्राई करता हूँ, आई ट्राई टू, आई डोंट वांट कि मैंने उनको कॉपी करना है। आई ट्राई कि मैं उस टेस्ट को अपने कुजीन के साथ कैसे आई कैन मर्ज इट एंड आई कैन प्रेजेंट इट एंड गिव इट इन अ बेटर वे। सो बाबास को लुधियाना की फूड इंडस्ट्री का किंग माना जाता है ना? तो कि मुझे ये आप बोल रहे हो कैसा फील होता है जब लोग आपको मतलब बोलते हैं बाबास, डेफिनेटली यू नो इट, बाबास इज नंबर वन? जी, मतलब सी अब जैसे अभी पीछे एक देयर इज अ कॉमेडियन कॉल्ड प्रीतिश नरूला, प्रीतिश नरूला ही होगा। सो ही सेड कि लुधियाना की जो ABC है ना, so that is A for Aman chicken, B for Baba chicken, C for चावला चिकन, and then some of D, so कहना D से दारू। so मतलब it is, वो कहता लुधियाना की ABCD यही है। so definitely बहुत privilege फील होता है। लोग डिफरेंट जगह से आते हैं, मैं जैसे बोलता हूँ तो अच्छा फील होता है कि हमें अच्छा इस फील से नहीं होता कि कोई फेम आ रहा है हमारे पास। हमें ये फील होता है कि हमने जो प्रोडक्ट डेवलप किया है या जो प्रोडक्ट की क्वालिटी हमने मेंटेन की है, उस वजह से वी आर गेटिंग एक्नॉलेज्ड एंड पीपल लाइक इट। तो इट गिव्स अ वेरी, मतलब वो जो खुशी है ना, आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, बट इट गिव्स अ सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट इज देयर। इट गिव्स अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड कंटेंटमेंट एज वेल। आपको एज अ पर्सन कौन सी चीज़ का सबसे ज़्यादा शौक है? ट्रैवल एंड फूड। So मतलब it's and what about materialistic things? I'm not into too many materialistic, neither I like to show off कि ये है वो है, but definitely I am fond of being spiritual at times. I'm really fond of traveling and eating a lot. So these I'm a teetotaler, so I don't drink, but definitely I like to travel new places and I like to explore food when I travel. सो क्या क्या अभी ऐसी चीज़ें हैं मिसिंग जो आपको लगती है बाबाज में, जो आप और लेके आना चाहते हो, इनकलकेट करना चाहते हो बाबाज में, बिकॉज यू ट्रैवल, यू एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स? कौन सी ऐसी चीज़ अभी भी मिसिंग लगती है कि अभी भी ऐड ऑन होनी चाहिए? See, अभी माय एस्पिरेशन इज कि एटलीस्ट I should maybe down the line, not immediately, maybe down 10 years down the line. So he is the first one who I'm seeing this. Down the line 10 years, I see Baba's having a Michelin star with it. I definitely want at least Baba should have a Michelin star with it, because our product is worth a detour. कि our product has that capacity and that sense of satisfaction when you eat it, कि आप उसके लिए कहीं से भी चल के आ सकते हो। See, I have people visiting from Bangalore, Mumbai, Delhi, जो कि सिर्फ मेरा खाना खाने के लिए आते हैं till today। अभी भी आज मॉर्निंग में there was a name, a person, मैं अभी अपने मॉर्निंग में स्पीच हूँ, रेस्टोरेंट के रिसेप्शन पर था, and there was a person, his name was Inderveer Singh, and like elderly aged uncle in his 60s. So he came, he said, I've come from Mumbai. He came on Uber. He said, I come from Mumbai. My flight was to Chandigarh. I traveled all around from Mumbai to Chandigarh. Then I stayed in Hyatt last night. And मैं morning सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मुझे बाबास पैक करवाना है। सो ही गॉट फूड पैक फ्रॉम मी एंड सर कि मेरी अब फ्लाइट वापस है। तो मैंने कहा अंकल आप सिर्फ मेरा खाना खाने के लिए है तो आप चंडीगढ़ में खा लेते हैं, मेरा चंडीगढ़ में हो रहा है। कहते हैं नहीं, जो मुझे सेटिस्फेक्शन आपके यहाँ आके मिलती है ना, कहते हैं एक वो आपके दैनी सर कहते पापा कहाँ है आज तेरे, मतलब डैडी कितने ने, तो मैं कहता है कि जो उन्होंने देख के तसल्ली होती ना यार, वो तसल्ली ले आए थे। ही गॉट अ गुड अमाउंट, उनका चेक अमाउंट भी इट वाज अराउंड 25-26,000। सो ही गॉट एवरीथिंग पैक्ड एंड उन्होंने, मैंने पूछा, मैं अंकल दिस अभी आपने करीज भी पैक करवाई हैं, मतलब इट वोंट स्पिल आउट, बट ये आपको हैंड बैग में, तो ये वो कहता है नहीं मेरे को
इसको चेक इन में ही डालना है, Check-in सो में। दैट कोई उनको मतलब लोग इस सोच से आते हैं। तो डेफिनेटली आई विश कि डाउन द लाइन आई हैव अ मिचलिन स्टार विद द ब्रांड बाबाज विद इट। मतलब मेरे माइंड में हमेशा एक क्वेश्चन था कि रेस्टोरेंट में जो खाना रात को बच जाता है उसका क्या होता है, मतलब इतना ज्यादा वेस्टेज होती है, क्या होता है? नहीं, इसी वेस्टेज नहीं होती है। वेस्टेज अब जैसे मान लीजिए वी हैव अ फ्यू केजीज ऑफ मटेरियल लेफ्ट, राइट, हमारी इन्वेंट्री ऑर्डरिंग उसी वे में होती है, सो दैट मान लीजिए वी नो कि मंडे, ट्यूसडेज एंड थर्सडेज आर ऑन द स्लोवर साइड व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, because these are Mondays where everyone is busy with their corporate life, and then Tuesdays and Tuesday, Thursday Thursdays people avoid having. Tuesday and Thursday due to superstitions as well, और कुछ लोग मना करते हैं कि मत खाओ, तो वो स्लोवर साइड पे रहते हैं। तो वी हैव आवर सिस्टम, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, वो चाहे हमारे खुद के रेस्टोरेंट चाहे हमारी फ्रेंचाइजीज हैं, वो प्रॉपर SOPs हैं जिसमें वी मेंटेन स्टॉक एट ए लेवल जहाँ पर देर इज़ नो स्पॉइलेज एंड प्लस देर इज़ नो वेस्टेज एज वेल। मतलब लेट अस सपोज एट इंस्टेंस कभी कोई पार्टी होती है बिगर पार्टी से, जैसे इधर सोयर सैम पे पार्टी होती है अराउंड 80 to 100 पीपल, उसमें कोई खाना बच जाता है, तो आवर फर्स्ट थिंग इज़ कि जो हमारा इन हाउस स्टाफ है, सो इट कंज्यूम्स द फूड। अगर फिर भी उसके अलावा देन वी मेक श्योर इट इज़ पैक्ड हाइजीनिकली एंड सर्व टू द पीपल हु आर नीडी। टू मेनी पीपल, वंस यू मूव आउट ऑफ द प्लेस यू गेट टू नो कितने लोग भूखे सो रहे हैं। वो तो आप यहाँ से बाहर निकल जाओ, मैं कहता हूँ once you get up, yes, very right, moment you step out of your building you get to know कि कितने लोग रात को भूखे सोते हैं। सो आफ्टर द नेक्स्ट प्लान, वैसे आपने बता दिया आउटलेट्स कहाँ पे खोलने हैं आपने, नेक्स्ट प्लान फॉर द आउटलेट्स? okay, so Ludhiana, there are 2 more outlets in Ludhiana coming up. So this is again, जैसे मैंने आपको बोला कि my aspiration is to have a Michelin star with the Babas. तो अभी जो लुधियाना में नया आउटलेट आ रहा है, it's going to be on Pakhwal Road, it's my self owned outlet. वहाँ पर the first thing in pan India which we are coming is I'm coming with a drive through. So it is going to be a Baba's drive-through in the very first place. So wherein we promise to deliver you everything under 1 minute. So you come in your car, you place an order for butter paneer and few chapatis plus a starter. So it's a promise to deliver it at while you're in the car under 1 minute it would be in your hand. Delivered. Yeah. Super delivered. fast. Super. So my all energy is Energy channelized is, towards this project now. कैसे आइडियाज दिमाग में आते रहते हैं, घूम फिर के घूम फिर ट्रैवलिंग के के इसी साथ? अगेन मतलब एक पैशन भी है ना कि इफ मैकडॉनल्ड्स एंड KFC कैन डू इट, Then व्हाई why नॉट not बाबास कैन डू Babas? इट। सो Yeah. मतलब डेफिनेटली सी दे आर बेंचमार्क्स फॉर अस व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल स्टेज। हमने बहुत कुछ सीखा है। आप सी मैं बोला कि इट्स अ लर्निंग प्रोसेस, आप रोज सीखते हो कुछ ना कुछ। हमारे से बेटर ब्रांड्स भी हैं, हमारे से बेटर रेस्टोरेंट्स भी हैं। जिस स्केल से हमने स्टार्ट किया है हम आज उस पर इम्प्रोवाइज कर रहे हैं और हम बेटर हो रहे हैं। सो वी कीप इम्प्रूविंग आवर डे बाय डे। मतलब जो अब मतलब सी नो ब्रांड इज बॉर्न परफेक्ट। अब आज से आप 30 years बैक चले जाओ, किसी भी चीज़ को देख लो तो वो हर एक चीज इवॉल्व होती है टाइम इवॉल्व के साथ, होती है। बिल्कुल। सो वी आर डेफिनेटली वी हैव मूव्ड अ स्टेप अहेड ऑफ एवोल्यूशन नाउ, बट अगेन वी आर thriving for more new products, more competitiveness in our products so that people prefer। अब अभी होता क्या है, जैसे भूख लगी होती है किसी को, so how this concept coming to your question कि अभी मान लो आपको भूख लगी, आप क्रेव कर रहे हो, तो आइदर यू क्रेव फॉर द कॉन्टिनेंटल फूड और या पिज़्ज़ाज पास्ताज हो गया, इटालियन फूड हो गया, या फिर आप क्रेव कर रहे हो कि यार मुझे इंडियन फूड खाना है। हमारे पैलेस तो वही हैं। तो उस केस में जब हम खाना अब कहते हैं वो रश होता है, हम कहते हैं यार आधा घंटा वेट करनी पड़ेगी, कौन जाएगा कौन लेके आएगा। सो हमारा ड्राइव थ्रू को आइडिया उधर से आया कि अगर किसी का चिकन टिक्का, चीज़ टिक्का, कुछ भी रोल खाने का मन कर रहा है, ही कम्स टू अस इन अ कार एट द ड्राइव थ्रू। वो हमारे से ऑर्डर प्लेस करता है एंड बाय द टाइम ही टेक्स एन एग्जिट फ्रॉम द विंडो, फूड उसके हाथ में होगा। लाइनें तो उधर भी लग जाएंगी। चलो वो दैट बाबा दीप सिंह जी knows, I am no one to guarantee it. My work is to make an effort to do it with passion
सक्सेस Success होना ना होना होना, वो उनके हाथ में ये है। बाबा दीप सिंह जी के हाथ में है। तो जैसे आप आउटलेट्स खोलते हो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके माइंड में होते हैं, स्पेस कैसे डिसाइड करते हो, क्या क्या चीज़ें अपने माइंड में रखते हो कि दिस इज़ द परफेक्ट, और जब आपको लगे कि हाँ यहीं पे होना चाहिए? See, first thing when we finalize an outlet is we want a legal location. कि it should be commercially approved, गवर्नमेंट के नॉर्म्स पूरे होने चाहिए, it should have adequate provisions for ventilation, sewage, fire safeties. So ये सभी चीज़ें हम पहले ध्यान में रखते हैं. देन हम उस लोकेशन के फैक्टर ढूंढे कि इट शुड बी एट अ प्लेस स्ट्रेटेजिकली जहाँ पर कस्टमर आए, मतलब आइदर इन अ मार्केट और हाई स्ट्रीट और connecting a market connecting to a residential area so that we have different stratas of people ordering. अगर हम एक रेस्टोरेंट कॉर्पोरेट जोन में खोलते हैं तो डेफिनेटली वी टेंड टू डू अ हायर बिजनेस इन लंच रादर देन डिनर. अगर हम यही रेस्टोरेंट किसी हाई स्ट्रीट पे खोलते हैं तो वी हैव हायर डिनर्स रादर देन हायर लंचेस. सो इट ऑल डिपेंड्स कि विच टेरिटरी आई एम वर्किंग इन. अगर हम मान लो पंजाब के किसी छोटे शहर में खोल रहे हैं तो डेफिनेटली उधर वी कांट एक्सपेक्ट अ हायर सेल एट द लंच आवर्स. सो हमारा फोकस रहता है कि इट शुड बी मोर डिनर ओरिएंटेड और उस लोकेशन पे होना चाहिए जहाँ से लोग आकर ईजिली कार पार्क कर सकें, ईजिली गेट डाउन हो सके, दी सराउंडिंग विसिनिटी इज़ गुड जहाँ पर सारा काम किया जा सके. सब लोग सक्सेस तो देख लेते हैं बट सक्सेस के पीछे की जो मेहनत है, स्ट्रगल्स है, सैक्रिफाइसेस है, वो मिस कर देते हैं. बिल्कुल. एनी एपिसोड ऑफ योर लाइफ व्हेन यू फेल्ट कि इतना कुछ करना पड़ रहा है? करना पड़ता सी. आई टेल यू द बिगेस्ट सेक्रीफाइस ऑल थ्रू ऑफ माई लाइफ हैज़ बीन ऑल दिस फेस्टिवल्स. जब सभी लोग दिन त्योहार पर अपने घर पर होते हैं सेलिब्रेटिंग विद फैमिली, वी आर एट द रेस्टोरेंट्स. वाई? बिकॉज सी रेस्टोरेंट्स एंड पब्लिक गो इनवर्स. जब पब्लिक बिजी है रेस्टोरेंट्स फ्री है, जब पब्लिक फ्री है तो रेस्टोरेंट्स बिजी है. तो उस केस में अब जैसे दिवाली दुशहरा होता है, सभी लोग छुट्टी होती है सबको, तो वो सब बाहर आके खाना खाना प्रेफर करते हैं. तो वो उस टाइम पे हमारा भी मन करता है, मेरी बीवी मुझे कॉल करती है आ जाओ घुमा लाओ कहीं, वैलेंटाइन डे आ रहा है अब तो उसी पे होता है. तो इट्स आर बिजी डे. तो सब ने घूमने फिरने आना है, चाहे वो फैमिलीज है चाहे वो कपल्स हैं, तो वो आएंगे लंच, तो वी हैव टू बी प्रेजेंट. So this is one of the sacrifices which is very pinching or but again but then at the same time it's very rewarding. It's rewarding. Yes, it's rewarding. It's rewarding. अगर आपको it has to be कि जितना आप एफर्ट डाल रहे हो आपको उसका रिटर्न मिल रहा है तो यू फील हैप्पी एंड ऑफ द डे. और मैं वही तो कह रहा हूँ कि जब आप लोगों को दिल से खिलाते हो ना तो ये वाला रिवॉर्ड तो वैसे ही मिल जाता है. राइट. सो इट वाज लवली हैविंग यू एज अ गेस्ट. बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके. मुझे लगता है कि बातें करते रहेंगे तो चलती रहेगी. बट अभी बातों के अलावा आपको फूड भी तो टेस्ट करना चाहिए. खाना भी खाएंगे, मतलब डेफिनेटली आप फूड ब्लॉगिंग करने नहीं आए बट आपको मैं फूड खिला कर ही भेजूंगा. ठीक है, और वेजिटेरियन खिलाऊंगा. डेफिनेटली. सो इट वाज लवली हैविंग यू. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ गेस्ट एट द फाउंडर्स अनप्लग्ड. और हम यही उम्मीद करते हैं कि जितने भी लुधियाना वाले हैं स्पेशली वो तो सब ये एपिसोड को बहुत एंजॉय करने वाले हैं. थैंक यू टू यू एंड थैंक्स टू सिमरन जोधा एज वेल फॉर ब्रिंगिंग अस ऑन बोर्ड. Without his efforts we wouldn't have been sitting here. Yes, absolutely. So thank you so much everyone for joining us here at the Founders Unplugged. So next episode में और बहुत सारी chit chat conversations आपके लिए लेके आएंगे. Till then stay tuned. Thank you.